Hello, friends. Good afternoon. Hello, sir. Yeah, good afternoon. Hello. Namaste. Sat Sri Good Akal. afternoon, sir. Yes. Assalamu alaikum. So, we are reading the book of Dr. Praful Vijaykar sir, the book of Predictive Homeopathy, Theory of Acutes. Today, प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखो, म्यूट रखो, सॉरी. कल हमने कुछ मेडिसिन देखे थे, एक्यूट रेमेडीज. तो which remedies we have learned in last lecture? That is sleep of overpowering remedies, anti-star, nux mosquita, and opium. Right? In opium, there is contentedness. In antimtar, there is trios of weakness, trios of excessness, excess perspiration, excess sleep, and excess weakness. In nux mosquita, dryness all over the body, that is dry mouth, spotting saliva, sleep overpowering, and fainting spells. And in after that, we have seen dull chilly thirstness. In dull chilly thirstness, the main remedy is sepia, acid form, and gelsemium. Ignatia, Staphysagia, Ipecac, and Natronca. So dull chilly thirstness. इसमें रेमेडी रूल आउट करना है on the base of diligent and non-diligentness. So in non-diligentness, the remedies are sepia, gelsemium, acid phos, ipecac, and china. So gelsemium, sepia हमने कल देखा था. Now gelsemium. Gelsemium, it is a very good remedy and it is frequently used in acute diseases. So gelsemium की मैंने आपको केस भी बताया था. Pericardial effusion and heart attack. So gelsemium, it is dull, chilly, thirstless, and gelsemium, it is remedy having hot thermals in chronic and chilly in acute. So the gelsemium patient is very, very dull, but no sleep. Feeling dullness, heaviness of eyelids. Eyelids इतने ऐसे भारी भारी हो जाते पेशेंट के. पेशेंट बोलता है कि हेवी फील हो रहा है आईज में. आंख खुलती नहीं, आंख से हाथ से आंख खोलनी पड़ती है. इट इज द हेवीनेस ऑफ आईलिड्स. डलनेस, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप. इतना डलनेस होने के बाद भी नींद नहीं आती. सो दीज आर द three main points of gelsemium. Other indications like heaviness above eyelids and of upper eyelid with occasional heaviness of limbs. Yes. पैर भारी हो जाते हैं, जैसे आंख भारी होती तो कभी कभी पैर भी भारी लगते हैं, लेकिन
पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है इन एक्यूट कंडीशन. Why restless? Because the movements of body gives relief to the pain of Jalsemium. Yes. Patient feels better by motion, by movements of extremities. So that's why जब हेवीनेस इन लेग्स बढ़ जाता है पेशेंट का, तो पेशेंट का वो हेवीनेस निकालने के लिए पेशेंट मूवमेंट्स करते रहता है कंटिन्यूसली. यस. सो दिस इज जैल्सीमियम. स्लीपी बट कैनॉट स्लीप. आंखें, पेशेंट बोलेगा कि इतना ऐसा लग रहा है, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, ऐसे आंखें भारी हो रही है, ऐसे खुल नहीं रही है, एकदम ऐसे लग रहा है कि अब मैं कितना सो कितना नहीं, लेकिन सोने जाता हूं तो नींद नहीं आती है. दिस इज जैल्सीमिया. टिमिड एंड एप्रेंशिव. यस. एप्रेंसिवनेस, थोड़ी थोड़ी बात के लिए एप्रेंसिवनेस, थोड़ी थोड़ी बात की इतनी चिंता, इतना डर, कैसे होगा, क्या होगा, लाइक दिस. सो एलिमेंट्स फ्रॉम वेजेशन, मनस्ताप. दिस इज जैल्सीमियम. तो हेवीनेस, इट इज द मेन पॉइंट ऑफ जैल्सीमियम. और अगर पेशेंट हेवीनेस नहीं बोलता है तो वो जैल्सीमियम नहीं हो सकता है. देन रूल आउट द जैल्सीमियम. ये देयर इज नो हेवीनेस इन आईलिड्स और लेग्स. यस. सो दिस इज जैल्सीमियम. बहुत ही सिंपल रेमेडी और बहुत ही अच्छी रेमेडी है. यस, जैल्सीमियम. देन एसिड फॉस. एसिड फॉस इज माय फेवरेट रेमेडी, क्योंकि एसिड फॉस इन एक्यूट कंडीशन मैंने इतनी बार प्रिस्क्राइब की और इतने एक्सलेंट रिजल्ट मुझे एसिड फॉस ने दिए है. बहुत ही. एक गैंग्रीन की केस में दिखाऊंगा जो एसिड फॉस से मैंने ट्रीट की, क्योर की. yes. बहुत ही एक्सलेंट रेमेडी है एसिड फॉस. dull chilly thirstness, and the main symptom of acid frost is iota, angry when oblique to answer. छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, इरिटेट होना, एंग्री, है ना. थोड़ा सा किसी ने कुछ पूछा तो गुस्सा, जैसे एसिड के जैसा वो इरिटेट करता है. दिस इज एसिड फॉस. डिजायर रिफ्रेशिंग कोल्ड ड्रिंक्स, juices, thumbs up, Coca-Cola, like this, Pepsi, etc. So this is desire for repressing cold drinks. Elements from grief, anger, and mortification. This is the positive factor of acid frost. So these are the three main symptoms of acid frost. One, iota. Second, elements from grief, anger, mortification, and third one is desire for repressing things. अगर patient को desire for repressing things नहीं है, then rule out the acid frost. Dullness, chilliness, thirstlessness with strong desire for cold drinks, cold repressing things like lemonades, etc. Anger plus when forced to answer, element from grief, anger, rejection, mortification, and other indications में एसिड फॉस में आपको बहुत से ऐसे सिम्टम्स है जो देखने को मिलेंगे, बट इन एक्यूट कंडीशन लाइक मेंटल वीकनेस फॉलोड बाय फिजिकल वीकनेस. इट इज द ग्रेट सिम्टम ऑफ एसिड फॉस. पेशेंट को सबसे पहले मेंटल वीकनेस आएगा, देन धीरे धीरे बॉडी फील्स वीक. कोई तभी टेंशन आके गया, उसके बाद हाथ पैर गल गए. पेशेंट बोलता कि जब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ ताकत ही नहीं. दिस इज एसिड फॉस. बहुत ही एक्सट्रीम वीकनेस होता है पेशेंट में, बट द मेन रीजन इज मेंटल वीकनेस फॉलोड बाय फिजिकल वीकनेस. ऐसा अगर पेशेंट बोलता है तो सबसे पहले उसे पूछना कि ये 15 दिन में, 8 दिन में, महीने भर में कुछ हुआ था क्या, कुछ मेंटल अपसेट्स हुए थे क्या, उसके बाद ये शुरू हुआ. डिजायर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड मिल्क, रिफ्रेशिंग थिंग्स, तो थर्स्टलेस.
So all things but cold things. Desire for cold things. Aversion to dry food. For example, bread, pizza, biscuits. Pain in limbs, hampered by motion, aggravated by motion. Elements from vegetation, mortification, fever after suppressed skin eruptions, and resignation. Discouragedness is the main symptom of acid reflux. Resignation because of lack of strength, mental and physical. So if no desire for cold drinks, then rule out the acid reflux. This is the acid reflux. Then ignitia. So any doubt about acid reflux or gelsemium, you can ask. Ignitia. Hello. Yes. हाँ सर, एसिड फॉस के साथ और भी देयर आर मेनी अदर रेमेडीज, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है कि बहुत सारे अगर बाकी का जो ये जो है ये अपना जलसेमियम और अदर प्लांट रेमेडीज है, उसमें भी ये सब फीलिंग रहता है, यू नो दे हैव अ शॉक एंड फीलिंग लाइक दिस, तो उसका और एसिड फॉस का कैसे डिफरेंशिएट करना? बहुत ही सिंपल है। एसिड फॉस, जेल्सिमियम, सेपिया, ये इग्नेशिया, स्टेपिसोजा, ये सब ड्रग अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे सिम्टम्स लेके खड़े हैं। जैसे जेल्सिमियम में हेवीनेस ऑफ आईलिड्स आपको चेहरे पर से ही दिखाई देगा, फट से समझ लेना एसिड फॉस है। फिर एसिड जेल्सिमियम है, फिर जेल्सिमियम कंफर्म करने के लिए आप उसके पल्स देखो, पल्स आपको एकदम वीक फीबल पल्स दिखेंगे, आपको प्रेस करना पड़ेगा रेडियल आर्टरी पे, तब जाके वो लगेंगे। 2-3 बार देखना पड़ेगा, पल्स ही नहीं लग रहे पल्स। दिस इज जेल्सिमियम विथ हेवी आईलिड्स एंड डलनेस, डिजीनेस, ये जेल्सिमियम के सिम्टम्स है। एसिड फॉस, ट्रिमेंडस वीकनेस विथ आयोटा। आप 2-4 सिम्टम पूछेंगे ना तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा कि अब मुझे मत पूछो, बस आप मेडिसिन दे दो, ये हो रहा है इसके लिए मेडिसिन दे दो। दिस इज एसिड फॉस एंड द मेन conformity symptom of acid frost is desire for lemonade or cold refreshing drinks. ये 3 सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं, फिर उसके बाद पूरी हिस्ट्री पूछ लो। ये सिम्टम अगर है तो देन इट इज एसिड फॉस। इग्निशिया में आपको ऑलवेज ग्रिप मिलेगा ही, ग्रिप नहीं है तो इग्निशिया नहीं। यस, देन इग्निशिया पेशेंट इज अ वेरी डिलिजेंट पेशेंट, कंसाइंशियस पेशेंट। तो हर मेडिसिन के यहाँ पे जितने भी एक्यूट ड्रग्स दिए हैं, हर ड्रग्स का अपना अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है, स्पेसिफिसिटी है इन एक्यूट कंडीशन। तो इग्निशिया, इग्निशिया में डल, चिली, थर्स्टलेस विथ diligentness, and that diligentness makes him ignitia. It is good girl or good boy image. वेरी स्टडियस, वेरी स्टडियस, कभी बोलना नहीं पड़ता इग्निशिया पेशेंट को पढ़ाई करो, वेरी स्टडियस। सिट्स इरेक्ट, आपको मालूम है कि इग्निशिया, स्टेपिसाग्रिया और लाइको, सिलिशिया, ये ड्रग्स वो है जिनको पेशेंट के रिलेटिव्स और पेशेंट हमेशा बोलेगा कि बाकी बच्चे मेरे साथ रहने के लिए झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ रहेंगे तो सुधर जाएंगे, वो देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना स्टडियस है। तो ये इमेज होती है इन ड्रग्स की। तो उसमें से एक है इग्निशिया। इग्निशिया सिट्स इरेक्ट, ऑलवेज सिट्स इरेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई सिट्स इरेक्ट? क्यों वो ऐसा टाइट बैठेगा? कौन बोलेगा? Yes. Ready to go. Yes. Ready to go. Ready to go. Yes. Always ready to go. That's why sits erect.
कि कभी भी कुछ भी आप पट से उठे अपने काम को लगे। दिस इज रेडी टू सिट्स इरेक्ट, रेडी टू गो। Sits erect without support and elements from hurt or grief. So very sensitive to hurt. कुछ भी हुआ तो एकदम दिल को लग जाएगा और पट से उसका दुख होगा। This is ignitia. Having a very much good girl or good boy image. Children who become obedient or start taking interest in studies, suddenly when ill, they study despite fever. That is conscientious negligence. Yes. तो जिनको काम का बुखार आता है और जिनको बुखार में भी काम याद आता है, वो इग्निशिया है। जिनको बुखार में भी काम याद आता है, मतलब बुखार है या फिर इलनेस है, फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। स्टूडेंट है तो स्टडी करेगा, ऑफिस मैन है तो अपनी ड्यूटी निभाएगा, हाउस वाइफ है तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगी हाउस होल्ड वर्क की। तो दिस इज इग्निशिया, वेरी डिलिजेंट एंड कंसाइंशियस। और जिनको काम का बुखार आता है, मतलब काम के लिए बीमार हो जाते हैं, लाइक विच ड्रग्स? पल्सेटिला, पल्सेटिला, Valkyria carb. not confidently Moscus. pulsatilla, Moscus. Sepia. बोल सकते, Natramur. Natramur, very good. Sulfur, Kalis, yes. So these are the drugs जिनको काम का बुखार आता है। Yes. सर एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर एक चीज और प्रैक्टिस में हमने सीखा एक्यूट में, इसकी पल्स कभी रेगुलर नहीं रहती है सर। थोड़ी देर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, जैसे एक पल्स एक फ्लो में रहेगी, फिर अचानक से स्लो हो जाएगी, फिर स्लो रहेगी, फिर अचानक जो है रैपिड हो जाएगी। ये सर हमने प्रैक्टिस में जो है देखा इग्निशिया की पल्स में। मतलब समझे नहीं? मतलब हिस्टेरिकल टाइप रहेगी सर कभी। Yes, yes. मतलब तेज फ्लो रहेगा, तेज अचानक से 1 मिनट तक फ्लो तेज रहा, फिर धीमा हो जाएगा, फिर धीमा रहेगा, फिर तेज हो जाएगा, मतलब इरेगुलर रहेगा। और बीपी भी सर ऊपर का एकदम हाई है, नीचे का एकदम नॉर्मल है, या फिर नीचे का एकदम लो है, उसमें भी सर वेरिएंट रहेंगे। मतलब जैसे 120/80 होना चाहिए नॉर्मली, तो इसका 150 पहुंच जाएगा, नीचे का 60 ही है, 50 ही है। ये मिला है सर प्रैक्टिस में इग्निशिया। That is not a hysterical condition, but it is a soric condition. 180/80 BP है तो it is soric BP. Yes. तो soric ignitia उसे बोल सकते हैं। Yes. Always sit erect without support of neck, back of the chair. Yes. Fever or diarrhea, etc. coming on after being upset. थोड़ा सा भी अपसेट हुआ तो बुखार, फीवर, लूज मोशंस, वोमिटिंग आल्सो। यस। On losing first rank, for example, on losing first rank, acquiring less mark than her friends, from being scolded or punished by parents or teachers. This is ignition. थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, कल बोल दिया, आज बुखार, दिस इज इग्निशन। ऐसे स्टूडेंट्स में आपको काफी एग्जांपल्स मिलेंगे, काफी इग्निशिया के पेशेंट्स मिलेंगे कि ट्यूशन में कुछ बोल दिया टीचर ने, घर पे आके बुखार आ गया, है ना। कल फादर ने कुछ बोला, मदर ने कुछ बोला, दादा दादी ने कुछ बोला, बुखार नेक्स्ट डे। तो
ऐसे टाइम पे एक ही बात कंफर्म करना कि बुखार आने के बाद इसकी क्या रिएक्शन होती है। ये स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। अगर वो स्कूल जाता है in spite of fever, then that patient is ignitia. So anxiety coming on suddenly at night between 2 a.m. and 5 a.m. तब याद आता है मेरी पढ़ाई बाकी है। Anxiety increase about work, study. Yes. Desire hot food which ameliorates. This is contradictory point of ignitia. Desire hot food which ameliorates. Hungry after fever. Yes, hungry after fever, contradictory. Hunger before or during fever is staphysagrina. Hungry after fever is ignitia. During fever is staphysagrina. Raw food ameliorates, and raw food, dry food, aversion is as a form. And ignitia, raw food ameliorates. गले में पेन है फिर भी raw food ameliorates. This is ignitia. These 3 points are contradictory point in ignitia. So this is, हमने कॉलेज लाइफ में ignitia एक ही पॉइंट सीखा था, कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन हर उसके जेनेटिक ट्रेट्स में या फिर उसके जितने भी सिम्टम्स है, उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, उसमें हर इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा, राइट। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्पेशली इग्निशिया के लिए होते इन द सिम्टम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे कि फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, एंड ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू डू हिज वर्क, इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर हम हर सिम्टम की स्टडी करते हैं इन डीप, हम तब तक पूछते रहते हैं पेशेंट को जब तक हमें सही आंसर ना मिले। तो आपको बहुत से सिम्टम्स में उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देगा। जैसे कि थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया, इतना सेंसिटिव नहीं, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो नेक्स्ट डे फीवर। दिस इज अगेन द कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि इतना गुड गर्ल गुड बॉय इमेज होने के बाद भी अगर इतनी सी छोटी बात के लिए सेंसिटिवनेस है, छोटी छोटी बात पे हर्ट होता है, ग्रीफ होता है, तो इट इज इग्निशिया, है ना। इतना अच्छा स्टडियस स्टूडेंट होता है, पर्सन होता है, ओबीडियंट पर्सन होता है, कंसाइंशियस होता है, डिलीजेंट होता है, गुड बॉय गुड गर्ल इमेज होता है, ये तो रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन ही सिट्स, ही ऑलवेज सिट्स इरेक्ट। दिस इज आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट। तो आप अगर हर सिम्टम की स्टडी करेंगे ना, तो आपको कहीं ना कुछ कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। दिस इज इग्निशिया। यस, जो हमने कॉलेज लाइफ में सीखा था, कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी इज इग्निशिया। नाउ स्टैफिसाग्रिया, अगेन स्टैफिसाग्रिया, इट इज अ सो स्वीट रेमेडी इन एक्यूट्स। इतने सारे पेशेंट्स स्पेशली डेंगू के स्टैफिसाग्रिया से ट्रीट किए। जब अकोला में डेंगू की साथ आई थी तो स्टैफिसाग्रिया से बहुत सारे पेशेंट्स अच्छे हुए, बिकॉज ऑफ हर्ट, बिकॉज ऑफ एंगर सप्रेस, बिकॉज ऑफ इंसल्ट, ऑनर इंज्योर, जिसकी वजह से दिस इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेंगू फीवर। क्योंकि डेंगू में ऑनर इंजर्ड होगा, डिवैल्यूएशन होगा, उसके बाद ही प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एंगर सप्रेस, बिकॉज ऑफ एंगर ऑनर इंजर्ड, दिस इज स्टैफिसाग्रिया। चिली थसलेस है, डिलीजेंट है, कंसाइंशियस है, देन स्टैफिसाग्रिया। बहुत सारे पेशेंट डेंगू के स्टैफिसाग्रिया से अच्छे। So, dull chilly thustless, studious during fever, elements from anger, vexation, mortification, and increased hunger. Increased hunger during fever. Good boy, good girl image,
wants to study or go for daily work despite fever or pain. अब देखो सेम सिम्टम है इग्नेशिया का, लेकिन इग्निशिया और स्टेपिसाग्रा में कैसा कंपेयर करना। तो स्टेपिसाग्रिया having history of anger suppressed and ignitia having history of grief or hurt. Yes, दोनों में मेन डिफरेंस ये। Then wants to study or go for daily work despite fever or pain, not out of any compulsion. Yes, तो कहीं कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि करना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, लेकिन because of inner interest, that is the diligentness of his genetic trait, he wants to do study in spite of him. This is stepisagria. Increased hunger during fever or before fever. Acute complaints come after having had a quarrel with someone or being angry with someone and not able to express it. This is the positive factor of stepisagria. कहीं कुछ हर्ट हो गया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा निकालते नहीं, सब अंदर रखते हैं, पी जाते हैं और उसके बाद बिकम इल. So this is stepisagria. Stepisagria टाइम पे फिर 1 mg है, पोटेंसी सर 200 ही रहेगा। 200. डेंगू में भी मैंने 200 ही पोटेंसी देके बहुत से केसेस को निकाला है स्टेपिसाग्रिया से, और एक केस तो इतनी अच्छी क्योर हुई है स्टेपिसाग्रिया से, डेक्यूबिटस एंड हिमेंजियोमा. यस, हिमेंजियोमा की वजह से पेशेंट को इतने बिग अल्सर्स, दैट इज बेड सोर्स हुए थे बटक रीजन पे, कि जिसमें से बोन दिखता था, हिप बोन डायरेक्टली हेड ऑफ फीमर दिखता था. तो इतने डीप अल्सर्स वो केस में आपको दिखाऊंगा, और पैराप्लेजिया बिकॉज ऑफ हिमेंजियोमा एंड दैट डेक्यूबिटस cured by stepisagria, completely cured by stepisagria. बहुत ही एक्सलेंट केस थी, मैं दिखाऊंगा आगे आपको. Now ipecac, dull chilly thirstness, nausea. nausea ipecac का ऐसा सिम्टम है जो आपको हर सिम्टम के साथ मिलेगा. Then clean tongue and contemptuous. Contemptuous मतलब ये इतना इगोइस्टिक स्टीम पर्सन होता है इपिकैक, किसी को भी ऐसे नीचे का ही दिखेगा, नीचे का ही देखेगा. यस, अपने से ये अपने लायक नहीं है, अपने बराबरी का नहीं है, लाइक दिस. सो nausea in season which is not being or not be relieved by vomiting. Constant nausea, जब तक vomiting नहीं होगी तब तक nausea कम नहीं होगा. Clean tongue, hot tongue, very hot. China ipecac, it is very hot remedy. Continuous nausea not ameliorated by vomiting. Pale, cold, clammy looks. Pale, cold, clammy looks. Yes. Paleness होता है चेहरे पे. Clammy looks, coldness of skin is ipecac. Hotty, difficult to please, contemptuous face. आप कितना भी मनाओ, कितना भी सॉरी बोलो, मान जाओ, है ना, लेकिन मानेगा नहीं. Very difficult to please. Disdainful humor. Disdainful humor मतलब दूसरों को हमेशा तुच्छ, तिरस्कार करने वाला पर्सन. दिस इज डिसडेनफुल. किसी को अच्छा नहीं बोलेगा, हर किसी को ये
हमारे बराबरी करनी, उसकी लायकी है क्या मेरे से बात करने की, लाइक दिस। ये लैंग्वेज होती है टिपिकल एंड क्लीन टॉक, दिस इज टिपिकल। देन natrium का, it is ambithermal drug, dull, chilly, thirstless, and the main symptom of, that is confirmatory symptom of natrium car is aggravation from sun, though he is chilly but aggravated by sun. मिसएंथ्रोपी, कभी किसी में घुल मिलेगा नहीं, अलग रहना, अकेला रहना, कोई सोशल फंक्शन में जाना नहीं, किसी के यहाँ जाना नहीं, घर पे गेस्ट आए तो पसंद नहीं, है ना, कोई फ्रेंड नहीं, दिस इज natrium car, बट वेरी डिलीजेंट, कंसाइंशियस। मिसएंथ्रोपी होती है बट एट फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेला भी नहीं रह सकता, मतलब ये अलोननेस उसे पसंद है, लेकिन बाजू के रूम में, घर में कोई ना कोई होना, अकेला नहीं रह सकता, दिस इज मिसएंथ्रोपी। टिमिड, बाशफुल, लोनर, रिजर्व, एट फाइटर, यस, लोनर, रिजर्व, एट फाइटर, मतलब अगर इसके साथ किसी ने कुछ किया तो ये फाइट भी करता है, बिल्कुल ऐसे सहन नहीं करेगा स्टैफिसग्रा जैसा, बट फाइटर। टिमिड होता है बट एट फाइटर। डिजायर ब्रेड, एवर्जन टू मिल्क, एवर्जन टू मिल्क अगेन इज द कंफर्मेटरी सिम्टम ऑफ natrium car। निबलिंग हंगर एट 5 AM, सुबह 5 बजे की भूख लगती है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं और भूख लगती है, मे बी natrium car। aggravated by sad music, thunderstorm, wants to be alone, it traits being alone, aversion to certain person, this is the symptom of, जो कल मैंने बताया था कि अगर किसी को नजर लगती है, affected because of bad visions, टोक लगती है, नजर लगती है, दृष्ट लगती है, तो natrium car, और उसके लिए रूब्रिक है aversion to certain persons। इट इज एक्यूट कंडीशन, है ना। तो नजर लगने के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कब हम natrium car सोच सकते हैं, क्या सिम्टम्स आएंगे, टोक लग गई, नजर लग गई, लॉस ऑफ अपेटाइट, दृष्ट लागली, जेवणार नाही तो, डायरिया, लूज मोशन, नॉट डायरिया, डायरिया सिम्टम नहीं होता है नजर लगने। नजर लगने के सिम्टम्स है बहुत पैवनिंग होना, डलनेस लगना, डिजीनेस लगना, है ना, पेशेंट बहुत अंगड़ाइया देता है, राइट, ऐसा हल्का हल्का सा बॉडी एक होना, हेडेक होना, ऐसे कुछ तभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, पेशेंट सोएगा फिर उठेगा, कुछ करने को दिल नहीं करेगा, है ना, फेवरिश लगेगा, बॉडी एक होगा, थोड़ी बहुत ठंडी लग सकती है, आंखों से पानी आना, तो दिस इज, लेकिन प्रोफ्यूज एवनिंग, एवनिंग बहुत होता है पेशेंट को, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ टोक लगना, नजर लगना। तो ऐसे वक्त हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, दैट इज आप कहीं गए थे,
स्वच्छ ढक के गए थे, किसी ने आपको बोला कि आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आज आप बहुत खास दिख रहे हैं, है ना, किसी ने आपको कुछ ऐसे टोका, किसी ने कुछ बोला, है ना, तो इस टाइप का अगर कुछ मिलता है तो पेशेंट अगर ये बोलता है कि हम गए थे वहां, वो लोग मुझे ही देख रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे, है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो दिस इज एवर्जन टू सर्टन पर्सन, तब हम सोच सकते हैं नेट्रम का। नाउ चाइना, it is the frequently used remedy in acute dull chilly thrushles. Very sensitive to touch, but better by hard pressure. Simple touch के लिए sensitive है, लेकिन better by hard pressure. Periodicity. आज बुखार 4 बजे आया तो कल भी बुखार बराबर 4 बजे ही आएगा. This is periodicity and desire for fruits and tea and spicy things. Irritation seen on the face as a reverse frown. Reverse frown मतलब चेहरे पे आपने कुछ बोला कि चेहरे पे ऐसा रिवर्स फ्रॉन आता है, फ्रॉन. This is reverse frown on the face of China. Again, tormented feeling. हर चीज, हर बात पेशेंट को टॉर्मेंट फील होती है, टॉर्मेंटेड फील होता है. अरे यार जाओ ना तुम, मेरे साथ क्यों, मेरे को क्यों बोल रहे हैं, लाइक दिस इज टॉर्मेंटेड फीलिंग. हर कोई मुझे ही क्यों बोलता है, हर बार मेरे ही साथ क्यों होता है, दिस इज टॉर्मेंटेड फीलिंग ऑफ चाइना. So weakness, flatulence, Krauss fruits. Yes, weakness, tremendous weakness. Flatulence होता है, बार बार इरिटेशंस होता है, पेशेंट को बहुत ढेकर आते हैं, इरिटेशन एंड Krauss fruits. फूड के बजाय Krauss fruits. Sensation as if everything is hindering or tormenting him. Tormented face. गर्मी भी होती है, हीट लग रही है, उससे भी टॉर्मेंटेड फीलिंग. प्यास लग गई है, उससे भी टॉर्मेंटेड फीलिंग. इरिटेशन हो रहा है, यार मुझे ही क्यों होता है. फीवर आया, मुझे ही क्यों होता है, लाइक दिस, है ना. घर में किसी को नहीं होता है, मेरे फ्रेंड्स लोगों में किसी को नहीं होता, मुझे ही क्यों होता है, मुझे ही बुखार क्यों आता है. दिस इज हिंडरिंग और टॉर्मेंटेड फीलिंग. Physically sensitive to slightest noise. Yes. Periodicity, weakness, and tormented face. This is China. Frown on face. Always seen the frown on face. Again, wrinkles on the face. China के पेशेंट पे चेहरे पे इतने बारीक ऐसे स्मॉल रिंकल्स होते हैं. आपने कभी वो टाइटैनिक फिल्म देखी है? टाइटैनिक फिल्म में जो हीरोइन दिखाई है ओल्ड एज की, उसका फेस याद करो, उस टाइप का फेस होता है चाइना का. यस. सो दिस इज डल चिली थर्सलेस रेमेडीज. तो आज हमने कौन से ड्रग्स देखे? जेल्सिनियम, एसिड फॉस, इग्निशिया, स्टैफिसाग्रिया, Ipecac, Natrum, Carb, and China. So these are dull, chilly, thirstless remedies. Now, in medicines में, in drugs में, किसी को और कुछ कहना है, पूछना है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, या फिर कोई अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो इन ड्रग्स में जिन्होंने पेशेंट्स में देखा, स्टडी किया, मिला, खुद एक्सपीरियंस किया, ऐसा कुछ अपने पास होगा तो यहाँ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को वो चीज सीखने को मिलेगी. यस, खाटदेव जी बोलिए.
सर नाइट्रम कार्ब जो है उसको जी। मिल्क से आवर्षण रहता है, पर अगर श्रीखंड है या बासुंदी है ऐसी चीजें वो पसंद कर यस सकता है यस क्या? यस 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 खाली प्लेन मिल्क, वो भी प्लेन मिल्क बोलेगा पेशेंट, प्लेन मिल्क बिल्कुल हाँ। पसंद नहीं। उसमें बॉर्नविटा डाल के पिएगा तो अच्छा लगेगा, हल्दी डाल के पिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन प्लेन मिल्क, नो डिजायर फॉर प्लेन मिल्क, एवर्जन हाँ, फॉर प्लेन मिल्क। यस। क्योंकि सर एक सोरियासिस का पेशेंट मेरा उससे ठीक हुआ नाइट्रम कार्ब से, पर उससे मिल्क नहीं पसंद था, पर मिल्क से बासुंदी और बने श्रीखंड वगैरह बने हुए पसंद था। पदार्थ अच्छे लगते थे। यस ठीक है। और उसमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड भी रहता है सर। यस, क्योंकि वो कंसाइंशियस होता है ना। यस। एंड सेंसिटिव आल्सो, आर्टिस्टिक पर्सन्स आर सेंसिटिव। यस, थैंक यू। हेलो। यस। हाँ सर, ये स्टैफिसाग्रिया और इग्निशिया जरा फिर एक बार आप डीडी करोगे, बताओगे प्लीज? स्टैफ और इग्निशिया में इग्निशिया। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ होता है, हर्ट होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम हर्ट ग्रीफ। और स्टैफिसा, और एक बात, इग्निशिया इट इज लेफ्ट साइडेड एंड स्टैफिसाग्रिया इट इज राइट साइडेड। स्टैफिसाग्रिया में एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, सप्रेस, मॉर्टिफिकेशन, ये होता है। सर ये देन सप्रेस और मॉर्टिफिकेशन दोनों में भी है, इग्निशिया उधर भी है। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन एंगर दोनों में भी सप्रेस। आता है, लेकिन हाँ मॉर्टिफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑनर इंज्योर, बिकॉज ऑफ किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया हाँ। तो स्टैफिसाग्रिया जाएगा। मॉर्टिफिकेशन की वजह से गुस्सा आया, गुस्सा कुछ निकाल नहीं पाया, सप्रेस किया, तो स्टैफिसाग्रिया आएगा। मॉर्टिफिकेशन की वजह से बहुत दुख हुआ, वाह। बहुत हर्ट हुआ, ऐसे डीपली हर्ट हुआ मुझे, वो बात मेरे दिल से जाएंगी नहीं, ये इग्निशिया। ओके। यस। और स्टैफिसाग्रिया रोएगा नहीं कभी किसी के सामने, इग्निशिया पट से रो देगा। इग्निशिया में भी है ना, विपिंग कंट्रोल में भी है ना इग्निशिया। यस, वही बोल रहा ना, इग्निशिया पट से रो देगा, अच्छा। स्टैफिसाग्रिया रोने का, क्योंकि स्टैफिसाग्रिया में स्टीम बहुत होता है, हाँ। वो रोएगा नहीं। ओके, थैंक यू सर। लेकिन सर इग्निशिया में भी तो वीपिंग कंट्रोल करता है। हेलो क्या सिम्टम है बताइए? सर, उसमें है ना इग्निशिया में की यानी वो ते म्हणतात ना की बा कंठ दाटून येणे, पण बाहेर डोळ्यातून पाणी न निघणे, यस, इग्निशिया। लेकिन दिल तो रो रहा है ना? आणि सर मतलब तो उसका उसका कहने का मतलब, वो सिम्टम्स का मीनिंग ये है कि उसे बहुत ही डीपली हर्ट होता है, भला ही वो दिखाएगा नहीं लेकिन हर्ट होता है। स्टैफिसाग्रिया में हर्ट के बजाय एंगर होता है, बहुत अंदर से उसको खुन्नस रहेगी, एंगर रहेगा, घर पे जाके किसी और चीज पे निकालेगा, लेकिन जिसका गुस्सा है उसके चेहरे पे कुछ नहीं दिखाएगा, घर पे जाके किल। दिस इज स्टैफिसाग्रिया। इग्निशिया एखादी बार बता देगा कि यार आपने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत मेरा मन दुखा है, दिस इज इग्निशिया। पण सर इग्निशिया हायडिंग हिमसेल्फ मध्ये पण म्हणजे पटकन ओपन नाही होत इग्निशिया। यस, नॉन एक्सप्रेसिव है ना, हाँ, लेकिन इग्निशिया में एंगर नहीं ना। अच्छा अच्छा। यस, और कोई? सर रिप्रेसिंग थिंग में क्या क्या आएगा? यस, रिप्रेसिंग थिंग में क्या क्या आएगा? आपका आवाज कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिप्रेसिंग थिंग में क्या क्या आएगा? रिप्रेसिंग थिंग्स में जूसेस आएंगे, लिमोनेड्स आएंगे, देन कोल्ड ड्रिंक्स आएंगे, टी कॉफी भी आएगा। यस, लेकिन एसिड फॉस में स्पेशली रिप्रेसिंग थिंग्स में क्या कहा है? कोल्ड रिप्रेसिंग थिंग्स, जैसे कि नक्सोमिका आल्सो डिजायर फॉर रिप्रेसिंग थिंग्स बट हॉट रिप्रेसिंग थिंग्स, वैसे ही आर्सेनिक का भी है, ब्रायन का भी है फॉर हॉट ड्रिंक्स, डिजायर फॉर हॉट ड्रिंक्स। यस,
आप रिफ्रेश होने के लिए कभी कॉफी पियोगे, कभी टी लिए होगे, है ना। दिस इज रिफ्रेशिंग थिंग। किसी किसी को सूप पसंद है, सूप गिव्स हिम फ्रेशनेस, तो सूप भी रिफ्रेशिंग थिंग्स में आएगा। ओके, यस। तो सर एक बार मॉर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। मॉर्टिफिकेशन, जैसे कि किसी ने कुछ डांटा, कुछ बोला, तो पेशेंट को कैसा मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, अंदर से खराब लगेगा। पेशेंट सोचेगा यार उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे ही डांटा, है ना। जो वो फीलिंग आती है दैट इज मॉर्टिफिकेशन, है ना, कि भाई मैं इतना बुरा हूं, उन्होंने मुझे डांट दिया, मुझे सबके सामने बोल दिया, मैं इतना खराब हूं, मैं इतना बुरा हूं। तो खुद के लिए जो फीलिंग आ रही है ना, ये सोचने के बाद, ये कहने के बाद, दैट इज मॉर्टिफिकेशन। तो मॉर्टिफिकेशन, चैग्रिन एंड ह्यूमिलिएशन, इट इज द सेम मीनिंग, सेम रेमेडीज। कोई किसी के सामने एकदम से डांट देता है, कोई सोचता नहीं है कि यहाँ सबके सामने डांटना अच्छा है नहीं है, किसी ने कुछ रिमार्क दे दिए, किसी ने कुछ बोल दिया पट से मुंह पे, तो ही फील्स मॉर्टिफिकेट, है ना। तो वहां पे मॉर्टिफिकेशन हम ले सकते हैं, ह्यूमिलिएशन ले सकते हैं, चैग्रिन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। नाउ डल चिली थर्स्टी। अब डल चिली थर्स्टी में देखिए, बेलाडोना, नक्स ओमिका, चाइना, आर्निका, कल्ट्रियापॉस, फॉस्फोरस, हायोसायमस एंड स्टेमोनियम। अब इसमें हायोसायमस, इट इज एम्बिथर्मल ड्रग, हिस्टेरिकल ड्रग। हायोसायमस is chilly in acute, hot in chronic. Arnica is chilly in acute, hot in chronic. Stramonium, it is hysterical remedy, it is ambithermal remedy. Yes. So these are the drugs in dull chilly thirstiness. अब हर रेमेडी का एक वन लाइन सिम्टम सर ने यहाँ दिया है, वो अगर प्रोमिनेंटली हमें मिलता है तो हम उस पॉइंट पर से रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इरिटेबल, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट नॉइस। इरिटेबल, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट नॉइस में सर ने यहाँ 4 रेमेडीज दिए हैं, बेला, नक्स ओमिका, चाइना एंड आर्निका। अब हर रेमेडी का अपना अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है, जेनेटिक सिम्टम्स होता है, तो वो क्या है? तो if patient having redness and heat, then it is belladonna. Patient having iota, then nux vomica. Flatulence, craving for fruits, China. अब आयोटा में 2 रेमेडीज है, नक्स ओमिका एंड आर्निका। नक्स ओमिका, दैट इज anger, very much angry patient is nux vomica. Sensitive patient, sensitive to slightest noise, desire for tea coffee is nux vomica. And आर्निका के लिए बहुत ही अच्छा सिम्टम है, दैट इज बेड फील्स हार्ड। आप कितने भी सॉफ्ट गद्दी पे, सॉफ्ट थिंग्स पे पेशेंट को बैठाओ, सुलाओ, there is sensation like bed feels hard. Yes, so this is आर्निका। मतलब कितने भी सॉफ्ट बेड पे पेशेंट को सुलाओ, पेशेंट सो नहीं पाएगा, पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस। दिस इज आर्निका। Then
टच मैग्नेटिज्म डिजायर, टच मैग्नेटिज्म डिजायर में मोस्टली 2 रेमेडीज आते हैं, फॉस्फोरस एंड कलक्रिया। अब फॉस्फोरस हैविंग टच मैग्नेटाइज्ड डिजायर एंड डिजायर फॉर कोल्ड जूसेस एंड आइसक्रीम, आइसी कोल्ड थिंग्स इज फॉस्फोरस। कलक्रिया का आपको डिजायर फॉर आइसी कोल्ड थिंग्स नहीं होता है, लेकिन एमुलरेटेड बाय और अप्लाइड बाय कोल्ड थिंग्स, दिस इज कलक्रिया। Phosphorus is left-sided, Calcrea is right-sided. Phosphorus having less of perspiration, Calcrea having lot of perspiration. Phosphorus having aversion to sweets, Calcrea having desire for sweets. Phosphorus having aversion to milk, Calcrea having desire for milk. This is the main differentiating points of Calcrea and phosphorus. Phosphorus is lean thin, Calcrea is obese. Yes. Then spasms, violent symptoms. Spasms and violent symptoms में 3 रेमेडीज है, बेलाडोना, हायोसाइमस एंड स्ट्रेमोनियम। हायोसाइमस में इंसाइटिंग शेमलेस मिचिंग, यस, तो शेमलेसनेस होता है, फुलिशनेस होता है, दैट इज हायोसाइमस। बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम में वन कॉमन थिंग, दैट इज एग्रेवेटेड बाय ब्राइट लाइट। बहुत लाइट रहा तो ये पेशेंट को पसंद नहीं है। दिस इज बेला एंड स्ट्रेमोनियम। देन bony pains, eupatorium purr. So these are the drugs covering dull, chilly, thirstiness. So सर मैग्नेटाइज्ड डिजायर, मैग्नेटाइज्ड डिजायर मतलब जैसे हेडेक हो रहा है तो सिर दबा के मांगना है ना, प्रेस करो अच्छा लग रहा है, हाथ पैर दबा के दो अच्छा लग रहा है, बांध के रखो अच्छा लग रहा है, ऐसे जस्ट ऐसे भी किया तो पेशेंट को बेटर फील होता है। हाथ पकड़ के बैठो, मेरे पास आके बैठो, है ना, बस हाथ में हाथ पकड़ के बैठता है। दिस इज ऑल थिंग आर मैग्नेटाइज्ड डिजायर। मसाज करना, प्रेस करना, दिस इज मैग्नेटाइज्ड डिजायर। फॉस्फोरस और कलक्रिया में मैग्नेटाइज्ड डिजायर में से, लेकिन फॉस्फोरस का और कलक्रिया का मैग्नेटाइज्ड डिजायर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फॉस्फोरस वांट्स मैग्नेटाइज्ड डिजायर बिकॉज फॉस्फोरस सक्स द एनर्जी फ्रॉम दैट पर्सन, तो वो एनर्जी लेता है उससे, इसलिए ही वांट्स मैग्नेटाइज। कलक्रिया वांट्स सपोर्ट, शेयर, कि आप मेरे पास रहो, आप रहे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई कलक्रिया वांट्स मैग्नेटाइज्ड डिजायर। इट इज द मेन डिफरेंस ऑफ these two drugs. Yes. So we will see these drugs one by one in we'll see these drugs in next lecture. Okay, so आज हम यही कंप्लीट करते हैं, कल हम पूरे ड्रग देख लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते, किसी को कुछ बताना है बता सकते, कुछ शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस, काही नाही ग मधु, इथे तापाची औषधी येतेच पडलेलं औषध। यस, किसी को Excuse me, sir. यस बोलिए। एओर्टा के बारे में सर थोड़ा समझा दीजिए, क्या होता है? एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर। पेशेंट को आपने पूछा, 2-3 सवाल पूछे कि ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या,
कैसा हो रहा है। तो जब आपके सामने पेशेंट बैठता है तो आप उसको डेफिनेटली उसके डिजीज के बारे में कुछ बताएंगे, पूछेंगे, उसके हेल्थ के बारे में कुछ पूछेंगे, तो पेशेंट इरिटेट होगा, उसके चेहरे पे आपको इरिटेशन दिखेगा, एंगर दिखेगा। डॉक्टर साहब ये क्या पूछते बैठ रहे हैं आप, मेरे को आपको दिख नहीं रहा क्या मुझे कितना दर्द हो रहा है, आप देख के दर्द के लिए दवा दे दो, हो गया, जाने दो। Yes, sir. ये क्या, ये फालतू की बातें पूछ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है अभी। दिस इज एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर। यही पेशेंट जब घर में होता है तो हम जब पेशेंट के रिलेटिव्स को पूछते हैं कि पेशेंट सुबह से कैसा है ना, तो शांत है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेचैन है, रेस्टलेस है, ये जब हम रिलेटिव से पूछते तो रिलेटिव बताते डॉक्टर साहब जब से बुखार आया ना इतना चिड़चिड़ चिड़चिड़, हम सादा इसको कुछ पूछ भी नहीं सक रहे कि कुछ खाना है क्या, पानी चाहिए क्या, ये भी पूछा ना तो भड़क जाता है। तो दिस इज एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर, आयोटा। यस थैंक यू सर। यस आप रेंज में आइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर नो वॉइस, नो नेटवर्क। आप सिंपल मैसेज डाल दो, हम देख लेंगे। सर जो अभी इरिटेबिलिटी बताया उसके लिए रेमेडीज क्या है वैसे? नक्सोमिका, आर्निका, आर्सेनिक, देन चाइना, एसिड फॉस, ब्रायोनिया। ओके तो ब्रायोनिया नहीं आती क्या? प्रायोनिया भी आती है। यस अभी नेट्रम कार भी बताया सर ने। नेट्रम कार्ड भी है। अयोटा रूब्रिक है ना, आप रूब्रिक डालो सिंपल, ये रूब्रिक में कुछ तो भी 7 रेमेडीज है। एंगर, आंसर, ऐसे 2 वर्ड भी डाल दे तो वो रूब्रिक आ जाता है। लेकिन इसे एक्यूट में ही लेना है, क्रॉनिक में नहीं। दिस इज फॉर एक्यूट ओनली, क्योंकि इसमें जितने भी ड्रग्स दिए वो प्योरली एंटीसोरिक ड्रग दिए, मतलब एक्यूट रेमेडीज है, क्रॉनिक नहीं। यस और किसी को कुछ पूछना है? अगर क्वेश्चंस हो गए होंगे तो हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 4 बजे विथ द न्यू acute drugs, dull chili thirsty drugs. Okay, so thank you very much. Yes. Bye bye. Thank you sir. Good night sir. Yes, take care. Thank you, sir. Thank you. बाय बाय Bye bye. बाय बाय Yes, किसने बोला बाय बाय? कौन था वो छोटा बच्चा? शारियन वाव, दिशाचा मुलगा अच्छा, खूप छान आवाज आहे त्याचा. तुला छान म्हटलं. गुड बाय. त्याला दाखव ना व्हिडिओ हा, हा. दाखव. हो हो अयोटा एक्यूट में लेंगे, क्रॉनिक में नहीं. दिसतोय सर. नाही, तुझा हँड राईज कर. ओके. हम्म. तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव मम्मीला विचार. मम्मी तुमचं नाव काय? ठीक आहे, सर आहेत माझे. तुमचं नाव काय? सर. दुसरं यस, सहदेव. दिशा, दिशा तुझ्यासारखाच आहे हा. छान, क्यूट. खूप नॉटी आहे तो. या क्यूट बेबी. तुला कसं वाटतंय आता?
सर झालेत कमी पण स्कार बनले खूप. हा ते जातील स्कार. हा कमी त्याच्या झाले. गाठी होत्या त्या कमी झाल्या. हो कमी झाल्यात. कमी झाल्या. ओके. येस. बाय बाय शारन. बाय बाय. गुड डे. See you tomorrow. Happy birthday. Happy birthday. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. No. नाही ऑगस्टला आहे. चालेल सर. ओके. Okay, bye.